ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, हरियाणा में चेकिंग हो रही है कि अगर कोविड पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां हैं। मैंने सारा ऑक्सीजन चेक किया है, आइसोलेशन बेड्स चेक किए हैं, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर दवाइयां भी सारी हैं। कोविड के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए और उनके लिए बाकायदा आइसोलेटेड रूम्स तैयार रखने हैं, हमने ऑक्सीजन तैयार रखनी है और इलाज तो उनका सिम्टोमेटिक होना है। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ HR ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਟਸ ਹੈ, PP ਕਿਟਸ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ RRT ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਮੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ 11 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਟਾਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਰੱਗਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ 180 ਬੈਡਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ सिविल हॉस्पिटल ਦੇ हैं। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, सिविल सर्जन कैथल। कोविड की तैयारी के लिए जो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया। इसके अंतर्गत हमने 20 जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे जिले के अंदर, जो सरकारी और प्राइवेट कोविड में जिन्होंने काम किया है, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर मॉक ड्रिल की गई। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। 450 के करीब हमारे पास और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमने अपने सरकारी संस्थानों में रखे हुए हैं। PSA प्लांट्स हमारे पास है 1000 लीटर का। साथ में हम कलायत के अंदर भी एक तैयारी कर रहे हैं और पूरी एम्बुलेंस वगैरह जो HR है, पूरा का सारा स्टाफ हमारा मॉक ड्रिल के दौरान बिल्कुल सही पाया गया है। डॉक्टर राम भगत, नोडल ऑफिसर फॉर कोविड फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। कोविड-19 के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपने जिले के सभी हॉस्पिटलों की तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल की है। वर्तमान में 47 सरकारी व 41 प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। इनमें करीब 3770 बेड्स की कैपेसिटी है। इसी तरह हमारे जिले में टोटल 24 ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 98 मीट्रिक टन है। फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयारियां कर ली हैं। दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग व टीकाकरण के सभी प्रबंध हैं। डॉक्टर जगमिंदर सिंह, डिप्टी सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र। हमारे सभी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज पे, जिसमें से 24 हमारी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, 10 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एक आदेश मेडिकल कॉलेज, टोटल 35
हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ये मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें हमने कोविड को लेकर सभी तरह के लॉजिस्टिक एंड कंज्यूमेबल और ड्रग्स की अरेंजमेंट के बारे में सबसे अपना उनका फीडबैक लिया है और वो सब चीज़ें हमने S3 पोर्टल है जो उस पर अपडेट कर दिया गया है। अभी जो केसेज निकल रहे हैं करंटली हमारा जो स्टेटस है वो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 29 जो है एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 28 केसेस होम आइसोलेशन में है और थर्ड डे जो है माइल्ड फीवर और कफ के कोल्ड की प्रॉब्लम से पेशेंट आ रहे हैं। एक पेशेंट PGI में एडमिट है, वो किसी और बीमारी से वहाँ एडमिटेड है, वो कोविड पॉजिटिव रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा लंबा टाइम हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है, तो अभी वो हॉस्पिटलाइज है, इसलिए हम उसको एक्टिव केस में ही गिनेंगे। डॉक्टर सुभाष खत्रेजा, डिप्टी सिविल सर्जन, कोविड हिसार से। हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि टोटल 69 इन नंबर थे, उनका पूरा मॉक ड्रिल प्लान हुआ और जो भी डाटा था कोविड-19 इंडिया पोर्टल पे अपलोड हुआ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन फैसिलिटी करीब 4395 और जो नंबर ऑफ आइसोलेशन बेड थे टोटल वो 1976 और बाकी जो भी ICU वेंटिलेटर्स तैयारियां जिसमें कि लॉजिस्टिक, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर, मेडिसिन, ट्रेनिंग देखा, चेक किया। सिरसा में केसेस बढ़ रहे हैं, 6 पेशेंट आए थे और एक पेशेंट तो हमने अभी दाखिल भी कर रखा है, वो थोड़ा सा उसको सांस की दिक्कत ज्यादा थी, तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट दाखिल भी है। हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 170 जो है ऑक्सीजन बेड्स हैं, 16 हमारे पास ICU बेड्स हैं और 50 हमारे पास नॉन ऑक्सीजन बेड्स भी हैं, 28 के करीब वेंटिलेटर्स हैं, 6-7 बाईपैप हैं, हमारे पास 72 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और 325 के करीब हमारे पास बड़े वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं। कोविड-19 की मॉक ड्रिल की है, ये सारा हमने अपने सिस्टम को चेक करने के लिए कि सारे हमारे इक्विपमेंट्स, मशीनरी फंक्शनल है या नहीं, अगर उसमें कोई कमी है तो हम उसको ठीक कर लें, क्योंकि अब पॉजिटिव केसेस आने लग गए हैं। 27 केस अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं जो अपने घर में ही दवा ले रहे हैं और अब तक कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। और इससे अलग अब बाद में जो नया स्टाफ रिक्रूट हुआ है सेकेंड वेव के बाद, अब उनकी भी ट्रेनिंग सारी दोबारा से करवाई जाएगी ताकि अगर कोई वेव आती है तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। मैं सिविल सर्जन पंचकुला डॉक्टर मुक्ता कुमार। बढ़ते हुए कोरोना के केसेस आजकल इस वेव में आ रहे हैं, उसके बारे में सबको फिजिकली एसेस कर पाए कि उनका क्या स्टेटस है तैयारियों का। जो हमारा उसमें सारे हॉस्पिटल जैसे सिविल हॉस्पिटल, SDH कालका या प्राइवेट कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स और हमारे बाकी जो CHC और PHC हैं, जहां पर क्या ऑक्सीजन रिलेटेड बेड की स्थिति है, उसके बारे में हमने असेसमेंट किया। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे साथ काफी सहयोग रहा। हमारे PSA प्लांट्स कायदा वर्किंग स्टेट में डिप्टी कमिश्नर को दिखाया गया कि वो पूरे वर्किंग है, ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट पूरा वर्किंग है, फ्लू कॉर्नर की पूरी वर्किंग और जो कोविड आइसोलेशन वार्ड और बेड्स हैं वो उनको दिखाए गए और वो काफी संतुष्ट होकर यहाँ से गए। तैयारियां सिविल हॉस्पिटल में पूरी तरह से ठीक हैं। जो हमने मॉक ड्रिल में डाटा कलेक्ट किया उसमें सफिशिएंट नंबर में डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में प्राइवेट और सरकारी को मिला के ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स अवेलेबल हैं और ICU बेड्स 103 ICU बेड फंक्शनल अभी पंचकुला में अवेलेबल हैं और 72 फंक्शनल वेंटिलेटर्स डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में अगर कोविड की स्थिति कोई बिगड़ती है तो हमारे पास अवेलेबल हैं। मॉक ड्रिल की है जिसमें सिविल हॉस्पिटल भिवानी उनमें से एक है। इसमें पता चला कि हमने जो पेशेंट आए थे जो मॉडरेट टू सीवियर, इसमें उन मरीजों का इलाज होता है। ICU भी है यहाँ पर और DCHC भी यहाँ डेजिग्नेटेड है। इसमें हमारे 244 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, टोटल 300 बेडेड हैं यहाँ और ICU के 28 बेड हैं। तो सभी पॉइंट पर हमने एक बार चेक किया है कि जो भी कमी है वो दिशा निर्देश दे दिए कि उनको पूरा करें ताकि किसी भी मरीज को असुविधा का सामना ना करना पड़े। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਆਪਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਸਲੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਲੂਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ।
मेरा नाम रविंदर सिंह, पिंड डरोली भाई, जिला मोगा। जो प्रधानमंत्री ने मुद्रा स्कीम चलाई है उसके तहत लाख रुपये का लोन मैंने लिया है। मैनू उसकी काफी प्रॉफिट हुआ है और कोई दिक्कत नहीं मोड़ने की। मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम नरवैर सिंह, पिंड कोरे वाला खुर्द, और मैं स्टूडियो ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।